everyone, welcome to my YouTube channel CrackZat, turning problems into solutions. This is me Priyasha Das, and today in this video we'll be dealing with the set 1 of games and tournaments. Probably this is my first video on games and tournaments on this channel, so therefore I'll be starting off with some basic things. Basic in the sense is like games and tournaments is not just about logical reasoning or about data interpretation. It's more about knowing some tricks. Now, this is a topic of DILR in which you should know a handful of tricks, like 4 to 5 things only, not more than that. These things will help you in your exam drastically, like direct questions. You would see, I would just help you consider this set 1 as a basic set for yourself. Basic set in the sense that only formula based things we'll be doing over here, and then I'll be coming up with a part 2 also, which will still be basic to slightly moderate set, where you will be seeing that you can apply the same concepts you learned in part 1 as well. Okay, so we'll take it slow like that, so that your basics and your foundation is clear, so that you can solve any games and tournaments questions coming your way in the examination. So starting off with first set, if you want to solve this, you can also solve this from the PDF attached in the description box, and try it on your own first. And if you come back to this video and try to see the approach with which I'm solving the questions, that would be beneficial for you as well. Starting off with the first set, assuming that you have already read it and tried it on your own, here we go. So we have 64 players scheduled to play. So this is the most basic, you can say basic kind of question terminology, where we see that some people are playing, there's a knockout round, one plays with the other, and the one which wins qualifies to the next round, and the one which loses will बी एलिमिनेटेड. तो ये एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल एक बेसिक वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, एंड ये बहुत कॉमनली आस्क्ड भी है. इस तरह के नॉकआउट राउंड्स वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, एंड इट कम्स ऑन अ सेम स्केल. ये एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन है जो टेस्ट करता है कि लोगों ने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स को सेपरेटली एज अ चैप्टर पढ़ा है या नहीं. क्योंकि एक बार भी अपने प्रिपरेशन के दौरान अगर कभी भी आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स को स्पेसिफिकली पढ़ा है, उसमें 2-4 दिन लगाए हैं, तो आप कभी भी इस चीज को भूलोगे नहीं. एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी और सर्च इन दैट. सो हियर इफ आई जस्ट कम बैक टू दिस क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको 4-5 बेसिक चीजें बताऊंगी जो हर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहता है. द फर्स्ट थिंग, हमेशा ध्यान रखना, जनरली आपका टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स विल बी अ पावर ऑफ 2. अगर कोई नॉकआउट राउंड की तरह का क्वेश्चन है, so this will always be in the power of 2. This is point number 1 which you can note down. Okay, if at all you're preparing some notes for this, you can note it down that this is point number 1, that hamesha total number of candidates or players would be in the power of 2 whenever there's a knockout round. Second, seeded or ranking are the same thing. That means generally ranks दिए जाते हैं लोगों को. ओके, दैट ये फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक वाला लास्ट रैंक के साथ खेलेगा, सेकंड रैंक वाला सेकंड लास्ट के साथ खेलेगा, सो ऑन. एंड दैट्स द सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर आल्सो. रैंक 1 इज प्लेइंग विद रैंक 64, रैंक 2 इज प्लेइंग विद 63 एंड सो ऑन. तो यही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है. Okay, the next thing which we're gonna check out here is the one who loses is eliminated, and the process repeats till the final. So in the first round, 1 is playing with 64, 2 is playing with 63, and upset. Okay, this is the third point you can note down. What's an upset? Upset is जहां कोई lower rank का बंदा एक higher rank को हरा दे, that's called as upset. ओके, सो अगर कोई अपसेट नहीं होता है तो हम एक बहुत ही जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं, एंड वो ट्रेंड मैं आपको बताऊंगी इन द कमिंग क्वेश्चंस. And the matches are scheduled such that there is no upset, and in each round the highest seeded plays with the lowest seeded left in the tournament, the second highest with the second lowest, and so on. So the first type of question which is always a part of any games and tournament set is the total number of rounds in a tournament. अगर आपको ये निकालना है कि इस पूरे टूर्नामेंट में मेरा कितने राउंड्स होने वाले हैं, अगर फर्स्ट रैंक लास्ट रैंक के साथ खेलता है एंड सो ऑन, देन इसको निकालने का एक बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है द पावर ऑफ 2. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट कि टोटल प्लेयर्स आर इक्विवेलेंट टू व्हाट पावर ऑफ 2, क्योंकि दो लोग एक मैच खेल रहे हैं. सो आई नो दैट 2 to the power 6 is equivalent to 64.
तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी एंड नंबर ऑफ मैचेस जो हम खेलने वाले हैं वो भी 6 हो जाएगा. दिस इज अ शॉर्टकट, अ स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन. लिख कर ले लो, ये स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के टॉपिक से, कि अगर कभी भी एक नॉकआउट राउंड वाला सेट आपको दिया जाता है जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और प्लेयर्स आर इन अ पावर ऑफ 2, देन उस पावर की वैल्यू आपकी टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होती है इन अ टूर्नामेंट. सो राउंड्स इज इक्वल्स टू द पावर ऑफ 2. ये आप लिख सकते हो कहीं पर भी अगर आप नोट्स बना रहे हो वहां पर. ऑलराइट. ओके, व्हाट्स द बेसिक मेथड? बेसिक मेथड सिर्फ समझाने के लिए बोल देती हूँ कि अगर फर्स्ट राउंड में 64 लोग खेल रहे हैं तो सेकेंड राउंड में एग्जैक्टली आधे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे. दैट मीन्स 32 एलिमिनेट हो जाएंगे, 32 बचेंगे. थर्ड राउंड में हमारे पास एग्जैक्टली हाफ ऑफ 32, दैट मीन्स 16 लोग रह जाएंगे, 16 लोग एलिमिनेट हो जाएंगे. फोर्थ राउंड में हाफ ऑफ 16, दैट इज 8 लोग रह जाएंगे, 8 लोग एलिमिनेट हो जाएंगे. सिमिलरली इन द फिफ्थ राउंड आई विल बी लेफ्ट विथ 4 पीपल एंड इन द फाइनल इन द सिक्स्थ राउंड आई विल बी लेफ्ट विथ 2 पीपल जिनके बीच फाइनल होगा और उसी सिक्स्थ राउंड में मुझे मेरा विनर मिल जाएगा. सो दैट्स अगेन समथिंग विच यू कैन अप्लाई योर ब्रेन्स एंड डू इट. अगर इन केस आपको एग्जाम में याद नहीं आया कि किस फॉर्मूला से हम टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालते हैं, तो यू कैन डू इट लॉजिकली like this also. Moving to the second question. So in the second question they are asking us how many matches are played in the tournament. So total number of matches कितने खेले गए हैं. This is yet another very direct question जहां पर आपको कोई भी calculation की जरूरत नहीं है, because the formula is कि जितने भी players हैं उससे एक कम मैच खेला गया है. That means the formula is total number of players minus 1. अब ये हुआ कैसे? आंसर तो हमें समझ में आ गया, 64 माइनस 1 63 होगा, बट ये हुआ कैसे लॉजिकली भी समझ लेते हैं. ऑफकोर्स अगर हमें कोई एक विनर चाहिए तो the number of matches will be one less than the total number of candidates, because at this tournament stated, or you can say that it is actually starting with 64 players and in the end only one player is left undefeated. So that means there were 63 matches जिसमें 63 लोग हारे हैं. So that's why this would help us to get the answer of this question. Logically सोचा जाए तो 63 लोग हारे हैं, वन लेस पर्सन हारा है देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल. एंड अगर याद कर लो फॉर्मूला वाइज तो इसे भी याद कर सकते हो. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन एवरीवन, एंड ये एक और की फैक्टर है जो आपको हर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में जरूरत पड़ेगी. तो भले ये क्वेश्चन डायरेक्टली आए या ना आए, दैट फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टूर्नामेंट, बट ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैचेस डिड ही विन अपॉन लाइक वर्सेस द टोटल नंबर ऑफ मैचेस. तो विनिंग मैचेस वर्सेस टोटल, तो टोटल निकालने के लिए फिर भी आपको ये करना ही होगा, राइट. तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में ये क्वेश्चन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में आएगा ही आएगा. To the third part right now. So the third question says which player faced the player seeded 3, that means rank 3, in the quarterfinals. Now you know in the quarterfinals we will be having 8 people. So round of 8 means not the 8th round. Round of 8 means where there are only 8 people left. That's the quarterfinals of the tournament. If the tournament had no upsets, तो ये एक important condition है. अगर tournament में कोई upset नहीं होता तो which player has faced player number 3. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए I want you to first go by the logical method. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लॉजिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस, इसके लिए एक बहुत इजी फॉर्मूला है, बट स्टिल आई वांट यू टू गो इन अ लॉजिकल प्रोसेस. लॉजिकल प्रोसेस में देखा जाए तो हमें पता है कि क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचने के लिए कितने लोग एलिमिनेट हो जाएंगे. लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट. क्वार्टर फाइनल्स में 8 लोग ही क्वालिफाई कर रहे हैं 64 से, तो रिमेनिंग लोग एलिमिनेट हो जाएंगे. रैंक्स हमें चेक करनी है कि कौन कौन एलिमिनेट हो जाएगा. वेल आई थिंक इफ यू बेटर गो इन दिस मेथड, आपको पता चलेगा कि जितने भी लोअर रैंक्स वाले लोग हैं वो तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, करेक्ट, क्योंकि अभी तक कोई अपसेट नहीं हुआ. यानी 1 और 64 में अगर मैच हुआ होगा तो 64 डेफिनेटली गया, 2 और 3 63 में हुआ होगा तो 63 डेफिनेटली गया. तो ये हमें पता है कि लास्ट के लॉट के सारे नंबर्स निकल जाएंगे
by the time we are reaching round of 8. राउंड ऑफ 8 में ये बात फिक्स्ड है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। राउंड ऑफ 8 में ये बात फिक्स्ड है कि मैं किसी भी बंदे से लड़ूंगी जो 1 to 8 के रेंज में होगा, जिसकी रैंकिंग 1 to 8 के बीच होगी। ये कॉमन सेंस है। सो दैट हेल्प्स मी टू एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है कि कोई अपसेट नहीं है, तो नीचे के जितने नंबर्स है वो सारे निकल गए, राइट। सो नाउ आई एम लेफ्ट विथ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब मैं आपको फॉर्मूला से इंट्रोडक्शन कराती हूँ। द फॉर्मूला इज sum of seedings of the player will always be equals to one more player. That means I'll just say sum of ranks is equals to sum of ranks of two players, okay, will be equals to one more than the players left. अगर 8 players left है क्वार्टर फाइनल्स में, so one more than the total players left. What do you understand here? You understand that मुझे एक बंदे का रैंक पता है, that is 3, दूसरे का नहीं पता, और 1 more than 8 will be equals to 9. इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो 6th रैंक वाला बंदा है, ही एक्चुअली फेस्ड रैंक 3 वाला बंदा और वहां से हारा होगा, क्योंकि कोई अपसेट तो है नहीं, तो 6 इज अ लोअर रैंक, तो वो गया बाहर। अंडरस्टूड? दिस माइट बी इजी नाउ। सो ये हमें याद रखना है कि अगर हमें अपने ओपोनेंट को खोजना है, दिस इज येट अनदर कंडीशन यू कैन नोट डाउन। अगर हमें अपने ऑपोजिट टीम मेंबर या फिर ऑपोजिट प्लेयर को खोजना है, व्हेन आई नो द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स लेफ्ट इन द गेम, then I can just add 1 to that. Like if 8 members are left, तो मैं 8 plus 1 9 कर दूंगी, and I'll try to search for the sum of one candidate plus the other candidate. Like here मुझे पता था कि rank 3 वाला प्लस 6 करने पर ही 9 के बराबर होगा, तो इसीलिए 6th रैंक वाला कैंडिडेट 3rd रैंक वाले के साथ खेलेगा। इन द सेम सिनेरियो, जस्ट टू ऐड एडिशनली, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन रैंक 2 के अगेंस्ट खेलेगा, तो इसे निकालना भी इजी है, सेम फॉर्मूला से। 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 9, सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 7। दैट मीन्स 7th रैंक वाला 2nd रैंक के साथ खेलेगा। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द ओपोनेंट। कहीं पर भी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि ओपोनेंट कौन है, तो वो निकालने के लिए प्लीज यूज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ रैंक्स ऑफ द टू प्लेयर इज इक्वल्स टू वन मोर देन और प्लस वन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स लेफ्ट। I hope this question is clear. Now let's move to the question number 4. In question number 4, it's mentioned if the tournament had no upsets, in which round was the player seeded 15 eliminated? मुझे ये पता करना है कि 15 eliminate हुआ कब. So to know this value, again the same thing, we'll apply common sense here first. ठीक है? Common sense यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? Common sense ये लगाएंगे कि पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में 32 मेंबर्स, आई मीन 64 मेंबर्स खेल रहे हैं, ओके। सेकेंड राउंड में 32 मेंबर्स खेल रहे हैं, थर्ड राउंड में 16 मेंबर्स खेल रहे हैं। नाउ प्लीज वेट टिल हियर। आपको पता है एक बात अच्छे से कि थर्ड राउंड तक तो 15 को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। Why can a person not eliminate someone with rank 15 by round 2? Actually not 3, basically 2. रैंक 2 तक कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि 15 का डबल is 30 and the total number of players are more than 30. सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूं मैं जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया था। इन क्वेश्चन नंबर 3 आई यूज द कॉन्सेप्ट कि चलो अगर 15 किस ओपोनेंट के साथ भिड़ा होगा इन राउंड 2, कैन एनीवन टेल मी इन द चैट? वेल, राउंड 2 में 15 किसके साथ भिड़ा होगा ये निकालना बहुत इजी है, क्योंकि ये हो जाएगा 33 और मेरा आंसर हो जाएगा क्या? मेरा आंसर हो जाएगा 33 माइनस 15 विच विल बी इक्विवेलेंट टू योर ऑपोजिट रैंक। ओके, सो ये तो काफी इजी है, लाइक वी ऑल नो दिस वेरी वेल कि ये काफी इजी है। 18th के साथ अगर 15 की लड़ाई हुई होगी और कोई भी अपसेट नहीं है तो 18th ही एलिमिनेट हुआ होगा। बट अब आते हैं थर्ड राउंड में।
Like I'll just consider the third round scenario and I'll delete all of this. थर्ड राउंड में चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि थर्ड राउंड में 15 की लड़ाई किससे होगी, इससे डिपेंड करता है कि कितने राउंड्स तक, किस राउंड में एग्जैक्टली किस राउंड में 15 एलिमिनेट होगा. तो थर्ड राउंड को कंसिडर करते हैं. थर्ड राउंड में 15 विल बी facing 17 and that means सेकेंड पर्सन को फेस करेगा 15. अब क्योंकि कोई अपसेट नहीं है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि सेकेंड रैंक के सामने 15th रैंक हार जाएगा एंड द एग्जैक्ट राउंड इन विच 15 इज गेटिंग एलिमिनेटेड इज राउंड नंबर 3. दैट्स ऑप्शन डी. काफी अंडरस्टूड है, काफी इजी है. हमें पिछले कॉन्सेप्ट को यूज करके ही इस क्वेश्चन का भी आंसर निकालना है. सो रिमेंबर दैट इन दिस क्वेश्चन, इफ एनी टाइम इन एनी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स क्वेश्चन यू गेट अ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा बंदा कब किस राउंड में एलिमिनेट हो रहा है, तो दैट वुड बी ओनली सॉर्ट आफ्टर व्हेन यू नो द ओपोनेंट. Okay, then moving to the last question for this video. How many matches did the player who lost in the semi-finals win in the tournament? इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, तो एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले तो पढ़ना है हमें. The first thing which we have to find out is कौन सा प्लेयर है जो सेमीफाइनल्स में हारा. This is point number 1. और point number 2 है कि हमें फिर ये निकालना है कि उस बंदे ने अपने पूरे टूर्नामेंट में कितने मैचेस जीते. ऑलराइट, सो दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ प्लेयर हु लॉस्ट इन द सेमीफाइनल. सेमीफाइनल यू अंडरस्टूड is a round in which only 4 people are left. Semi-final is a round in which only 4 people are left. तो वो इस राउंड तक तो क्वालिफाई कर गया कि वो लास्ट 4 में से था. अगर वो लास्ट 4 में से था तो वो अपने पहले कितने राउंड्स जीत कर आया है. यू कैन थिंक दैट इजीली. फर्स्ट राउंड जीत कर आया है जिसमें कितने लोग थे, 64. सेकेंड राउंड जीत कर आया जिसमें 32 लोग थे. थर्ड राउंड जीत कर आया जिसमें 16 लोग थे. फोर्थ राउंड जीत कर आया जिसमें 8 लोग थे. बट जहां वो फिफ्थ राउंड में पहुंचा जहां 4 लोग थे वहां वो हार गया, तो ये नॉट काउंटेड होगा. फिफ्थ राउंड के मैचेस या विनिंग मैचेस नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो बंदा सेमीफाइनल में हार गया तो वो फिफ्थ राउंड में तो हार गया, बट फिफ्थ राउंड तक पहुंचने के लिए उसने 4 राउंड्स खेले, 4 राउंड्स जीते, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी 4. All of this is much logical based, so you just have to visualize the scenario. But मैं आपको ये recommend नहीं करूंगी कि आप एग्जाम में इस सिनेरियो को विजुअलाइज करो. Rather, I would recommend you that you practice 2, 3, 4 more such sets ताकि आपके अंदर ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाए कि हाँ भाई मुझे तो बस माइनस करके आंसर निकाल देना है. That's all I have to do. क्योंकि एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता कि हम बढ़िया से विजुअलाइज करें और समझे. समझने के लिए आपको एग्जाम से पहले मेहनत करनी होगी एंड एग्जाम में जाकर इम्प्लीमेंट करना होगा. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो राइट नाउ. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद मोर एंड मोर पीपल, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब करना मत भूलना. And one more very important thing that I'll be quickly coming with the part 2 also, जहां मैं बिल्कुल सिमिलर ऐसा सेट लूंगी जिसमें 1-2 क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा डिफरेंट होंगे बट 3 क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर स्ट्रैटेजी में होगी, so that you can apply the same things and the tricks you learned in this video to the part 2 set, and जो 2 न्यू चीजें होंगी वो आपकी न्यू लर्निंग होगी. So that was all for this video. Thank you so much for watching it. I'll be up with the part 2 very soon. Till then, take care of yourself and thank you so much again for watching it.